IVM. So today we have two players from Jamshedpur FC, someone whom I think Baru and I have seen play on and off, and we've seen them play live as well. So we are quite excited to have them here. I would let Baru introduce the guests on today's show. All right. Our first guest is Aniket Jadhav. He literally arrived into the Indian football scene right out, with the Under-17 World Cup back in 2017. And I think a lot of us have become fans of him just because of his skills and his speed. He's been with Jamshedpur FC for one season already. And I think all of us agree on the fact that we've got a huge star in the making. Aniket, can we see you? Hello. Hello. Hello, indeed. Finally. All right. Along with Aniket, we've got Farooq, who is also a part of the Indian national team, since 2018. He's been in ISL for 4 seasons now, and 3 of them have been with Jamshedpur, and 1 has been at Kerala Blaster. Guys, can we just welcome Farooq? Hello, everyone. Hello. How are you, sir? Hi. I'm good. How are you? Good. Chalo. So, hi, Farooq. Good to have you here. Yeah. So, let's start this session. Oh, man, I'm just so tired, yaar. Why? God. All right, Too Baru. much work, man. Too much work. Chalo, let's start with this question. Pooch lo. Let's go. All right. So Aniket and Farooq bhai. So the first question to you is very simple. When did you guys think आप professional footballer बन सकते हैं? Like at what point during your life you thought, oh, you know what, I can start playing football professionally? And Farooq, why don't you start? And then Aniket could give an answer after that. So this was a time when I finished my 10th standard board exams, and I was, like all the other kids, enjoying playing football for the school team, divisions, और उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए 10th स्टैंडर्ड के, तो जो वेकेशंस मिलते हैं 3 months की, So at that I mean, obviously till the time you join college, the result comes and everything. So at that time, I remember I used to play the whole day, morning, evening, every time I used to play only football. And that is the time when my local club coach, he spoke to me like, Farooq, this is the time you need to make a decision. So are you going to take football professionally, or, just for fun, and then continue studying and go into some other profession? So I think I used those 2 months, I think 1 month or 2 months, to really think and make a decision. And I think I thought of taking football as my profession, and today we are here. Man, there's so many follow-up questions on that. Before we get to that, Aniket, आपने कब सोचा कि आप professionally football खेल सकते हो? Like when I was child, I used to play in the street. Like in Kolhapur, like there are so many footballers. Like you must be knowing. Like there is a one stadium, Shahu Stadium. हाँ. तो काफी crowd आता है football match देखने के लिए. So मैं भी एक दिन like fans type, like I used to go to watch the matches and all stuff. So from there I started playing football, and I got motivated to play football. Then उसके बाद मैं पुणे में गया, फिर वहाँ पे ही था, फिर फारूक भाई भी वहाँ पे थे पुणे FC में, तो उनको देखता था, तो काफी मोटिवेट होता था, और फिर उनको ही देखते सबको चालू कर दिया फुटबॉल खेलना. अच्छा, तो आपका भी 10th स्टैंडर्ड के बाद ही हुआ कि नहीं, स्टार्टिंग में ही हुआ मेरा. लाइक 4th स्टैंडर्ड के बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल. All right. Farooq bhai, the question to you is, after 10th you decided to play football professionally. What was the reaction at home? क्या बोला लोगों ने घर पे? To be really honest, ये चीज मैंने शेयर किया नहीं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, because उसके पहले से जब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, उस वक्त से मेरे घर वाले काफी सपोर्टिव रहे हैं फुटबॉल के लिए.
but the only thing was that they didn't want me to play football only, you know. They made sure that I have to study as well, and not only study but do good in studies also. So that was the case here. So I think I managed to do both, and they have been very supportive until now. And इतना कुछ वैसा रिएक्शन था नहीं, क्योंकि उस वक्त पे मेरे पास कोई क्लब नहीं था जिसके लिए मैं खेल सकूं. यू नो, मैं ढूंढ रहा था मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो मुझे कोई ट्रायल्स नहीं मिले एकेडमी के लिए. तो फिर मैंने 10th के बाद 10th के टाइम ही मैं यहाँ पे MDFA लीग खेलने लगा, जो एलीट डिवीजन होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए. तो वहां से मेरी शुरुआत हुई. फिर वहां से मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाकर मैं अपने नेशनल्स खेला एज इन महाराष्ट्र टीम के लिए. तो वहां से पुणे FC के स्काउट्स आए थे, उन्होंने वहां से सेलेक्ट किया पुणे में. तो एकेडमी मिला. फिर बाद में आई लीग, लोन स्टार कश्मीर 2nd डिवीजन, फिर आई लीग. तो ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप गया. ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था, यू नो. तो वो लोग साथ में मुझे देख रहे थे कि मैं कैसे स्टेप्स चल रहा हूँ, और साथ में मुझे बहुत हेल्प किया. तो ऐसा शॉकिंग रिएक्शन नहीं था. अच्छा, that's because you were also studying well, right? Yeah, I was doing good. But until I left my house for Pune, उसके बाद से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. बट उसके पहले तक मैं स्टडीज बहुत अच्छा कर रहा था. इनफैक्ट मैंने 10th के बाद 2 years मैंने साइंस लिया और 12th तक साइंस किया है, और उसके बाद कॉमर्स लिया BCom. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट. At least you were studying well. You know, Baru and I found it difficult only to study. Forget games. गेम देखने और पढ़ाई करने में भी बहुत मुश्किल होती थी. हाँ, मेरे घर वाले तो बोलते थे पढ़ाई तो नहीं हो रही है तेरे से, एक काम कर, तू निकल जाए, तू बाहर जाके कुछ कर. अनिकेत, आपके साथ कुछ ऐसा हाल था क्या कि आपने बोला कि देखो मैं पढ़ाई भी करूंगा, फुटबॉल बस खेलने दो? नहीं, मैंने तो बस फुटबॉल ही चूज किया था. पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं था, तो दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही था मुझे, तो मैंने फुटबॉल ही चूज किया. तो पुणे में था मैं क्रीडा प्रबोधिनी में, लाइक ऑलमोस्ट 8 to 9 years I was there only in Pune. तो आई लीग के मैचेस होते थे, तो वहाँ पे फुटबॉल देखता था, और वहाँ पे बॉल बॉय भी करता था. और ISL सीजन 1 2nd के लिए बॉल बॉय किया. फारूक भाई को पता ही है. तो काफी वहाँ से मुझे मोटिवेट हुआ था कि लाइक कभी ना कभी तो खेलना है फुटबॉल इस लेवल पे, और अभी खेल रहा हूँ तो काफी अच्छा लगता है. और फारूक भाई के साथ खेल रहा हूँ, और करण भाई है, और सब प्लेयर अच्छे प्लेयर है. Aren't Farooq and Karan roommates at Jamshedpur FC, if I am not wrong? Yes, they are. Who shared this news with you? This is inside information. When you tell it in every public platform, it's not really inside information. Really? I didn't tell. Okay. You're talking about the live show there on ISL. सर, हम भी थोड़ा पढ़ के ही आते हैं. Okay, not bad. Homework करके आ सब लोग. All right. So the next question is for Aniket before Baru asks Farooq about Kashmir and the League 2 there. Aniket, आपने बोला कि आप ball boy थे, right? For ISL season 1 and 2. Do you think you were really a good ball boy, or you thought you were an like चलो ठीक है काम चलाओ ball boy? To be honest, like नजदीक से देखने मिलता था फुटबॉल, और वो टाइम ऐसा था कि लाइक इतना पैसा नहीं था कि लाइक ताकि टिकट परचेस करो और मैच देखने जाओ. तो मेरे पास ये सेकंड ऑप्शन था कि लाइक बॉल बॉय करके मैच भी देखने मिलता है और कुछ सीखने भी मिलता है, और वहाँ से प्लेयर को भी नजदीक से देखने मिलता है. तो उसके लिए मैंने बॉल बॉय चूज किया था. और वही से, पर आपने आंसर नहीं किया, क्या आप अच्छे बॉल बॉय थे? अच्छा तो नहीं था, लेकिन बस मैच देखने के बहाने में जाके खड़ा होता था. वाह, बढ़िया है. आई थिंक आई डोंट ऑब्वियसली मैनेजर ने चिल्लाया क्या आप पे कि गेम को आप स्लो कर रहे हो, बॉल वापस रिटर्न कर रहे हो? हाँ, चिल्लाया था एक मैनेजर ने. तो क्या हुआ था? बॉल टीम डाउन था तो बॉल भगा दिया था क्या वहाँ? नहीं, उन्होंने बोला था देखो समझ नहीं आता कि अपनी टीम जीत रही है, बॉल थोड़ा धीरे डालो, टाइम पास करो, मजे करो. ये चीज से मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं पुणे में गया था महाराष्ट्र के लिए खेलने, तो ये जहाँ पे अनिकेत था पहले, जहाँ पे क्रीडा में जो बालेवाड़ी में है, तो उनके साथ के और टीममेट्स थे जो मेरे साथ खेल रहे थे. उस बंदे का नाम है पराग, वो अभी बेंगलुरु FC में.
अच्छा। तो वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया था उस साल पुणे में। तो मैंने तो अनिकेत ये लोग सब बॉल बॉय रहते थे, तो मैंने उससे बात करके मैंने बोला पराग भाई प्लीज मेरा विश है, मेरे को ये प्लेयर्स को सामने से देखना है, आई लीग के प्लेयर्स को, तो प्लीज मेरे लिए कुछ कर, एक सीट दिलवा दे, तेरे बाजू में बॉल बॉय बनना है मुझे। और उसने कैसे कैसे करके बात करके कर दिया। अब चले गया अंदर, इतना नर्वस था मैं भाई, आई कांट टेल यू, इतना डर लग रहा था। और मैं वहां था, वो जो स्ट्रेचर होता है ना, स्ट्रेचर बॉय के यहाँ पे। तब मैं छोटा था तो बॉल बॉय करता था मैं। हाँ, और इतना टेंशन था कि अरे यार प्लीज किसी को, पूरा 90 मिनट्स में यही सोच रहा था कि कोई इंजर्ड ना हो, प्लीज मेरे को ग्राउंड के अंदर नहीं जाने उठाने को। डर लग रहा है, उठाते उठाते गिर गया, मैंने स्ट्रेचर को भी गिरा दिया तो मेरे तो कॉमेडी हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच के मैं पूरा प्रे कर रहा था 90 मिनट्स, बट वो अलग ही एक्सपीरियंस था। मेरे को अभी तक याद है, डेम्पो वर्सेस मोमेडन का मैच देख रहा था मैं वहां पे, और अमीरे ने गोल मारा था। वो मेरा फर्स्ट मैच था लाइव आई लीग का। Oh, but before we get to real Kashmir, you said stretcher boy. So how different is stretcher boy and ball boy? Like you can Stretcher still be boy, in the stadium, right? yes, you have to be in the stadium. तो स्ट्रेचर बॉयज बेसिकली जो डग आउट होता है उसके बाजू में ही बैठते हैं 4 लोग, और वहां पे आपके पास स्ट्रेचर टेबल होता है। लेकिन आप तभी जा सकते हो अंदर जब ऑब्वियसली आपको रेफ बुलाएगा, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, एंड व्हेन ही कांट वॉक। बट द बॉल बॉयज दे कैन मूव अराउंड, यू नो, बॉल यहाँ गया तो वहां गया, उनको अंदर नहीं जाना है, तो उनको वो प्रेशर नहीं है कि कुछ गलती हो जाएगा या कुछ नहीं होगा। मेरे को ये डर था कि किसी को लग गया और अंदर गया, और उठाते वक्त मैंने अगर गिरा दिया स्ट्रेचर तो क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं उस चीज के लिए डर रहा था। I think you should worry about the player. अगर आपने गिरा दिया तो प्लेयर से ज्यादा डर लगना चाहिए। वो इंजरी के बाद आई एम श्योर ही विल ढूंढेंगे। ऑब्वियसली उससे डर लग रहा है, वो अपने इंजरी छोड़ के मुझे मारने ना लग जाए। अपॉर्चुनिटी तो वही होती ना कि वो कहते तुमने हमारे प्लेयर को गिरा दिया, तो बोलना मैं हूं ना, अभी आता हूं ना अंदर। So I think from when Baru heard that he, like, you know, we're talking to you, he wanted to ask you questions about your experience in the Division 2. Baru, shoot your questions. हाँ, तो you played for Lone Star Kashmir, and I think in the J&K football circles, Lone Star and Real Kashmir का बहुत गंदा rivalry है. There have always been fights that usually would just break out. So how did you navigate firstly that rivalry, playing in an environment like Kashmir? How did that work out? क्या आपका मतलब एकदम एलियन, घर से दूर लीग 2 में? हाँ, तो मैं फर्स्ट चीज मैं ये बताऊंगा, जब सच में जब इंसान को डर लगता है तो क्या होता है। जब मैं यहाँ से गया, मेरे साथ और 2 मेरे पुणे एफसी के टीममेट्स थे, आशिर अख्तर और अल्तमाश शेख। तो हम तीनों गए, कश्मीर में लैंड हुआ, और हम लोग जाके, हमको जो रहने को जगह मिली थी, वी वेंट देयर एंड वी वर स्टेइंग देयर। जस्ट आफ्टर आई थिंक नॉट इवन अ वीक, वहां पे सीधा एक अर्थक्वेक आया, और कभी लाइफ में अर्थक्वेक यू नो ऐसे हुआ नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था। हम लोग प्रैक्टिस जाके आए, और हम लोग खाना खाने बैठे थे फ्रेश होके, और अचानक से मेरा फ्रेंड है जो अल्तमाश, वैसे शिवर हो रहा था। तो आशिर ने बोला क्या हो रहा है तेरे को? तो फिर अल्तमाश ने भी उसको देखा, आशिर भी शिवर हो रहा है, क्या हो रहा है तेरे को? और जस्ट हम लोग जा रहे थे तो ना, वहां पर बाजू में हम लोग के क्लासेस था जहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। तो वहां पे अल्तमाश ने बाहर जाके देखा, तो वहां की टीचर ऐसे देख रही है उसको, अल्तमाश उसको देख रहा है। टीचर ने बोला भाग, अल्तमाश ने बोला भागो इधर से। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, आगे हम लोग बाहर, सीरियसली हम लोग सीधा भी नहीं भाग पाए, यू नो, फुल टाइम ऐसे ऐसे हो रहा था। और बाहर जाके जब हम लोग गए तो वी कुड सी ऑल द लेडीज एंड एवरीवन, दे वर ऑल क्राइंग एंड वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, यू नो। पूरे बाहर के जो टावर्स होते हैं ना लाइट के वायर, वो हिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इतना हिल रहा है। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो इतना डर लग रहा था। नेक्स्ट डे हम लोग ने कोच को बोला, कोच सॉरी, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, हम लोग जा रहे हैं, प्लीज हम लोग को छोड़ दो। और घर पे फोन करके बोला कि नहीं रह सकते, सॉरी, और एक बार घर पे रह लेंगे, लेकिन ये अर्थक्वेक नहीं चाहिए। तो देन कोच ने बोला क्यों, मुंबई वाले डरते हैं क्या? ऐसे बोला। तो बोला नहीं सर, डरते नहीं है, लेकिन लाइफ थोड़ा इधर सेफ नहीं लग रहा मुझे। आपने ये डायलॉग नहीं बोला? हाँ, समझ गया। क्विक से लगता है। तो फिर घर पे बात किया तो पेरेंट्स ने समझाया कि अगर वही चीज यहाँ घर पे हो, अगर आ गया तो क्या करोगे, कहाँ भागोगे, टेंशन मत लो, तुम फुटबॉल खेलने गए हो
एंजॉय करो, टेंशन मत लो ज्यादा, कुछ नहीं होगा. आई थिंक देन वी स्टार्टेड एंड लकीली टू आंसर योर क्वेश्चन, उस वक्त रियल कश्मीर नहीं था, तो ये राइवलरी बिल्कुल भी नहीं था. सो वी वर द ओनली टीम एंड पब्लिक सिर्फ हमको सपोर्ट करने आती थी. हाँ, नाम ही था लोन स्टार कश्मीर, तो दूसरा टीम कौन सा ही होगा, एक ही तो स्टार है कश्मीर. नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर आया रियल कश्मीर, उसके पहले नहीं था. हम लोग अकेले मतलब सिर्फ लोन स्टार कश्मीर एफसी था. और उस टाइम अगर होता था राइवलरी तो प्रैक्टिस मैचेस में होता था. जब हमारा मैच जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो टीम है, JNK बैंक जो बोला जाता है, वो बैंक टीम के साथ जब मैचेस होते थे, तो तब एक्चुअली बिकॉज ऑल द कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीरी प्लेयर्स आर प्लेइंग इन दैट टीम. तो आई थिंक उनको एक ये था कि ये एक सेकंड डिवीजन आई लीग क्लब है, तो हमको अच्छा करना है, तो सही टफ मैच होता था बहुत. Oh man, so what was your age when you were at Lone Star Kashmir? When I was at Lone Star, I think I was 19, 20, something 19. Man, that must have been scary. I mean, first of all, you're in alien condition. उसके ऊपर पहले 2 दिन में ही earthquake हो गया. Yes. Completely, I'm telling you. आज भी मैं बैठता हूँ ना, कभी भी थोड़ा ऐसा मूव होता है ना, तो मेरे को इतना डर लगता है. अच्छा, याद आता कि फोन वाइब्रेट पे डाला था. फोन तो ठीक है, जब दोस्त होते हैं साथ में तो बैठते हैं ना, तो किसी को आदत होती है अपने पैर ऐसे हिलाते रहने की. तो तब अचानक से सोफा हिलता है ना, क्या हो रहा है ये, तो बाद में पता चला दोस्त ही पैर हिला. अनिकेत, आपको अर्थक्वेक का कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना? आपका तो बस अंडर 17 वर्ल्ड कप ब्लैकबर्न, वो तो यू हैड अ रिलेटिवली इजी लाइफ देन. नो, ये लड़का तो कितने कंट्रीज देखा है, इसको पूछ लो एक बार. लाइक रियल कश्मीर के साथ मैच हुआ था, तब मैंने ऑफ साइड में था मैं, और मैंने गोल कर दिया. फिर उसके बाद वो लोग ने कुछ बंदूक चलाया हवा में. इतनी पड़ गई थी, गोल भी मारू या नहीं मारू. तो मारा गोल आपने? नहीं, ऑफ साइड हुआ था मैं, फिर भी गोल मार दिया मैंने. और वो लोग ने मुझे इतनी गालियां दी और क्या क्या किया. बाहर जा रहा था मैं, तो क्या क्या बोल रहे थे वो लोग. ओह मैन. जब तुम्हारे कंडीशन से कैसे अडाप्ट करते हो तुम? आपका कोई रेजीम रहता है मैचेस से पहले, एक हफ्ता पहले पहुंच जाते हो, या इज इट जस्ट लाइक मैच से 1-2 दिन पहले ही पहुंच गए और ठंड में खेलो? फारूक भाई बताएगा. Whom you asking? अनिकेत or me? आप तो लोन स्टार में खेले थे. अनिकेत had gone there for a match, right? हाँ. तो वो एक मैच के लिए प्रिपेयर कैसे करते हो? फारूक को तो फिर भी थोड़ा लग जाता आइडिया. मैच के पहले दिन तो सेट पीसेस रहता है -1 डे, सेट पीसेस मोस्ट प्रोबेबली, और थोड़ा बहुत स्पीड वर्कआउट. सो टेक्निकली रहता है, और फिर उसके बाद मैच. नहीं तो तनुज, तो ऐसे मुश्किल है, क्योंकि सेकंड डिवीजन में अभी तो भी ISL में टीम्स गो 3 days प्रायर टू द मैच टू प्ले अवे गेम्स. बट सेकंड डिवीजन आई लीग में ऐसे नहीं होता है, जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने खेला है. तो आपको एक दिन पहले जाना होता है. देन इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज विद द कंडीशंस, कि आप कैसे मैनेज करते हो. दैट्स अप टू यू. वी डोंट दे वोंट हेल्प यू आउट विद समथिंग कि 4 दिन पहले लेके चले गए या 1 हफ्ते पहले लेके चले गए कि आप एडजस्ट कर लो टेम्परेचर. ऐसे कुछ भी नहीं था. टाइम नहीं आता है. नहीं, तो एक दिन पहले आते थे मोस्टली सब टीम्स. तो प्रैक्टिस करने मिला या नहीं, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट डे डायरेक्टली मैच खेलेंगे. बट वहाँ पे ऑब्वियसली मैचेस वो लोग ट्राई करते थे कि आफ्टरनून में खेले, 1 o'clock ऐसे, 1 o'clock 2 o'clock, बिकॉज थोड़ा धूप होगा तो एटलीस्ट दैट हेल्प्स. बट ठंड तो बहुत होती है, बहुत ज्यादा. Yeah, I can only imagine, and especially 2 boys who live in Mumbai, Kolhapur, wherever. ठंड तो we don't know what real cold is. Yes. At 25 degree पे हम स्वेटर पहन लेते हैं. So we have no idea. All right, Aniket, the question to you is, obviously you played in the under 17 World Cup, right? So could you just take us through how did you get selected for the squad there, and how was the preparation for the World Cup, given that we were hosting it, and how was the experience of playing in that World Cup? So experience was really something special to me. सब प्लेयर्स में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, और मुझे फॉरेन जो कोच थे निकोला एडम, उन्होंने मुझे बॉम्बे में सिलेक्ट किया. तो एक जर्नी था, तो काफी सब प्लेयर्स ने मैंने स्ट्रगल किया. और जब फाइनली इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी तब, और काफी सब सपोर्टर्स आए थे, तो काफी अच्छा था.
और बहुत कुछ सीखने मिला और प्रिपरेशन लाइक सब अच्छा चल रहा था प्रिपरेशन. हम सब मोस्टली यूरोप में ही थे लाइक फुल ईयर, तो सब टूर्नामेंट्स और लाइक मैचेस खेलते थे, फ्रेंडली मैचेस एंड ऑल. Okay. So we have some audience questions here. So this is, I think, to both of you. So let's start with you, Farooq. Do you follow European football? I think the answer must be yes. So which is your favorite club? And I read somewhere that your favorite players are Neymar and Ronaldinho. Is that right? Yes, yes, you have done your homework. Good. But I कहीं ये नहीं पढ़ा कि आप कौन से क्लब को सपोर्ट करते हो यूरोप में. अरे यार वही तो बड़ा सीक्रेट काम शेयर करना पड़ेगा. ऑब्वियसली ये दोनों प्लेयर्स जो क्लब में खेल के दे हैव डन सो गुड, वही क्लब को मैं सपोर्ट करता हूँ, एंड दैट इज एफसी बार्सिलोना. Oh, okay, fine. If you have to choose between Ronaldinho and Neymar, only one. You can't just give two answers. Who would it be? I would say Neymar because he's currently playing now. So Neymar. That is a very good answer. So we will continue this conversation. Otherwise, there would have been some sort of friction here. All right. Aniket, the same question to you. I do follow Manchester United. अच्छा, बुरा नहीं लगता आपको आजकल? काफी बुरा लग रहा है कि क्या बोलूं. नस दबा दिया. अभी वही सोच रहा था झूठ बोलूं या सच बोलूं. अभी इसमें सच झूठ की क्या बात है, जो लगता है वैसे बोलो. कुछ लोग बुरा मान गए थे कि नेमार को चूज किया रोनाल्डिनो के ऊपर, बट अभी जैसे ही उन्होंने बोला कि अभी अनिकेत ने बोला यूनाइटेड पसंद है, तो अभी सबका फैन फारूक सर के अनिकेत की तरफ चले गए. ऑब्वियसली रोनाल्डिनो तो अभी फैंस थोड़े कम हो रहे हैं. अनिकेत गॉड ऑफ फुटबॉल है, बट नेमार इसलिए क्योंकि अभी उसको और देख सकते हैं ना खेलते हुए. रोनाल्डिनो को देख के हो गया. All right. So there are two questions to you guys. Aniket, one is this: who is your favorite player in European football? And while you were playing football, let's say when you're preparing for under 17 or anything, who were the players in India you used to look up to? And Farooq, I would ask you the same question as well. But Aniket, why don't you start? My favorite player is like Ronaldo. And कौन सा, रियल वाला कि क्रिस्टियानो वाला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो. And I used to follow CK Vinit because मेरे पास तो स्किल्स नहीं थे, लेकिन जो सीके भाई कुछ करता है मैजिक, जो लाइक कुछ भी कभी भी आके गोल मारते हैं, वो मुझे पसंद था. और उनका स्पीड और बाइसिकल, तो वो सब देख के मैं उनको फॉलो करता था. Okay. And Farooq, aapka, when you were playing football or when you started playing football, who were the Indian players you used to look up to? Yeah, but I'll say I have two players. Obviously, being an attacker, being a striker, I used to look up to Sunil Bhai. And other than that, because I didn't know him personally, I used to just watch him play. But other than that, from the time I've been in Pune FC, वहाँ से लेकर अब तक मैं अनस एडा तोड़ी का, I'm sure you guys must be knowing him. तो अनस भाई रहे मेरे role model. I look up to him a lot. The way he plays, the kind of human being he is after achieving so much, and also on the field how he gives everything for his team. Obviously वो defender है और मैं striker हूँ, but the way he is, so he was my role model. But being a striker, I would say Sunil Chhetri. Man, I have to say in the comments from when they heard Cristiano's name, it's just Cristiano all the way, CR7. वही चल रहा है. And it finally took Farooq to say Chhetri. We started getting some love. All right. So let's get to now Jamshedpur FC, right? It is relatively, compared to the other clubs in ISL, it's a relatively new franchise. और आप लोगों ने अभी I think जमशेदपुर का बहुत नाम हुआ, I think when it started with Steve Coppell as manager, and then it has continued as well. How has आपका experience कैसा रहा है जमशेदपुर FC में, and how is it living in जमशेदपुर city? मेरे लिए तो ये फर्स्ट सीजन था, तो मैं काफी एक्साइटेड था लाइक ISL और जमशेदपुर FC ज्वाइन करने के लिए, और वहाँ पे फैंस और सब टीममेट्स, तो
काफी अच्छा था मेरे लिए ये फर्स्ट सीजन, और बहुत सारा सपोर्ट मिला फैन से, और प्लेयर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, कोच ने, और स्पेशली फारूक भाई, करण भाई, मोबशीर, मेमो, ये सब लोग ने मुझे काफी सपोर्ट किया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, और आशा करता हूँ लाइक अपकमिंग सीजन में कुछ अच्छा करो। All right. And Farooq, आप Yeah, I would start by saying about the fans because मैंने जब जमशेदपुर ज्वाइन किया, जब मुझे ड्राफ्ट में सेलेक्ट किया गया, तो मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग मैचेस देखने आएंगे। और मुझे पता है कि जमशेदपुर का हिस्ट्री क्या है अबाउट फुटबॉल, कि टाटा फुटबॉल एकेडमी इतने टाइम से एंड दे रियली लव फुटबॉल, बट आई डिडंट नो कि फर्स्ट ईयर टीम को इतना प्यार मिलेगा और इतने लोग आएंगे मैचेस देखने। सो इट वाज अ वेरी गुड थिंग कि फैंस आए इतने नंबर्स में और हमको सपोर्ट करने लगे हर मैच, हर मैच। और वो एक मेन चीज है जो मैं बताना चाहूंगा फैंस के बारे में। और उसके बाद कि आपने बोला कि कैसे रहते थे, क्या था, सो टॉकिंग अबाउट दैट आई वुड से कि यस, जमशेदपुर में इतना कुछ करने को नहीं है जैसे हम लोग घर पे करते, बीइंग इन मुंबई एंड नॉट अ वेरी गुड प्लेस लाइक मुंबई, बट ऑब्वियसली वो चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे और मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा इजी हो गया था क्योंकि और डिस्ट्रैक्शन थे ही नहीं, तो अपने काम पे ध्यान देना इजी हो जाता था, तो फोकस कर सकते थे एक्स्ट्रा क्या करना है, ऑब्वियसली टीम के साथ जो भी काम किया, बट उसके बाद एक्स्ट्रा क्या करना है और अपने आप को और कैसे इम्प्रूव करना है, ऑल दोस थिंग्स। एंड अदर देन दैट ऑब्वियसली जब भी ऑफ डेज मिलते थे हम लोग जगह ढूंढते थे कहाँ जाना है, कुछ नया ट्राई करते, खाने के लिए हो या कुछ भी हो। अनिकेत तो ये साल था, बट पिछले 3 साल से, और इसी 3 सालों में बीइंग देयर कुछ ज्यादा ही अच्छे लोग मिले टीम में, टिरी में, ऑल द फॉरेन गाइज जो 3 साल से है, एंड ऑल द इंडियन प्लेयर्स एज वेल, सुब्राटा भाई, करण भाई, एंड ऑल द जूनियर्स, मुबशिर एंड नाउ अनिकेत। सो आई थिंक ये 3 सालों में जितने लोग मिले हैं वो टीममेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लाइफ में, इट्स लाइक अ फैमिली नाउ। एंड उसके अलावा एक चीज था जो थोड़ा प्रॉब्लम देता था, बाकी सब चीज अच्छा था। एक चीज था कि जब हम लोग अवे मैचेस खेलने जाते थे तो थोड़ा ट्रैवल लंबा हो जाता था, we had to go for 4 hours in the bus to Ranchi first, and from there wherever you want to go। तो वो जो 4 आवर का जर्नी था फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा टायरिंग होता था क्योंकि फर्स्ट ईयर था और इतना आदत नहीं है, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर आई थिंक वी गॉट यूज्ड टू इट। एंड ऑब्वियसली योर कंपनी मैटर्स, डजंट मैटर हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू ट्रैवल, तो कंपनी अच्छी हो गई तो ट्रैवलिंग भी इजी हो गई। बट द बेस्ट थिंग अबाउट JFC I would say is the training facility they have. I don't think any ISL club has, as far as I know, क्योंकि मैं वहाँ 3 साल से रहा हूँ। हम लोग जहाँ रहते थे, जो फ्लैट्स था हमारा, सब प्लेयर्स और कोचेस और मेडिकल स्टाफ वो फ्लैट में रहते, एंड हम लोग का खाने का एंड एवरीथिंग, द लाउंज वाज देयर टू वॉच मैचेस, टू प्ले, वी हैड द पूल टेबल, वी had कैरम बोर्ड एंड देन प्ले स्टेशन एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद जो हम लोग का ट्रेनिंग पिच था वो जस्ट नीचे उतर के फ्लैट से सामने ही है, एंड जिम भी सामने था और स्विमिंग पूल भी इट वाज देयर ओनली, सो इट वाज वेरी इजी फॉर अस। एंड बिकॉज वी डिडंट हैव टू ट्रैवल टू गो फॉर ट्रेनिंग, जस्ट उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, अपना शूज लो और चलो सीधे ग्राउंड। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा टाइम पे पहुंच जाते थे, फिर टाइम पे उल्टा जल्दी जाते थे हम लोग, बिकॉज जिम सामने ही था, तो वी कुड डू सम व्हाटएवर वर्क वी वांटेड टू डू ऑन आवरसेल्फ। तो जिम में जाके आधे घंटे पहले जो भी कर लिए एक्सरसाइजेस, उसके बाद डायरेक्टली ट्रेनिंग। तो आई थिंक वो एक बेस्ट चीज है जो JFC के पास। अच्छा, तनुज, ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। मंजीरा इज आस्किंग, बुंदेसलीगा इज गोना स्टार्ट सून, तो उसमें तो अभी आ गया डायरेक्टिव कि स्टेडियम्स कोई फैंस नहीं आ सकता है अभी। कुछ क्लब्स तो दे सेटिंग अप कटआउट्स, फैंस से पैसे ले रहे हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपका स्टेडियम में फोटो रहे या आपका कटआउट रहे तो आप 19 पाउंड डोनेट कर सकते हो और आपका एक कटआउट लगा देंगे हम स्टैंड्स में। तो जब ऐसा एक सिचुएशन रहेगा जहां एम्प्टी स्टेडियम्स रहेगा, विच इज पॉसिबल कि इंडिया में भी ऐसा हो जब स्टार्ट हो, तो प्लेयर्स किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं फिर उस समय? मैन ही हट जाता है जब होम स्टेडियम से, तो वो एडवांटेजेस का आप कैसे फिर फायदा उठाते हैं? I really don't know how to answer this question, but क्योंकि मैंने
जब से ISL खेलना स्टार्ट किया, आई थिंक बहुत कम मैचेस है जहाँ पे फैंस नहीं आए होंगे, यू नो. It's a very difficult thing, without the fans, because they really cheer and help us a lot. जब भी हम डाउन होते हैं, तो वो एक मोटिवेशन होता है. But it will be difficult. It won't be easy. But I think fans can enjoy the match from being at home, and the players will have to adapt because we don't have any other option, as you know. जब इंडिया में होगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन it will be difficult. It won't be easy. Okay. Aniket, there's a question for you. I think you gave an assist to Farooq, 3-1 victory against Hyderabad. फारूक भाई ने मुझे assist दिया था. Assist, sorry, the other way around, right? So, so did Farooq, did you ever think, Aniket, अगर ये गोल नहीं मारा ना, तो आज देख लेना. वो तो उसको मारना ही था, क्योंकि जस्ट वो बॉल मिलने के पहले उसने एक ओपन पोस्ट हेडर मिस किया था, जो सर्जियो कास्टेल ने उसको पास दिया था, और जो ऑब्वियसली वो बॉल अपने हमारे गोल पोस्ट के यहाँ से कैरी करके लेके आए और सर्जियो कास्टेल को मिला. कास्टेल ने एक अच्छा पास दिया, पर अनिकेत ने, मेरे को लगता है जब हेड मारने गया ना, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तो वो बॉल ऊपर चले गए. एंड ऑब्वियसली उसका वो फर्स्ट टच था मैच का, बिकॉज वो एज अ सब्स्टिट्यूट आया था. So it was difficult. I won't say that it was easy, but to handle that pressure कि आपका first touch हो और वो सीधे गोल पोस्ट में जाए, it's difficult. But at the same time, मेरे को लगता है अगर और एक चांस अगर अनिकेत को मिल गया तो वो surely वो गोल मार देगा. अच्छा. And Aniket, that was your first goal or like in the competition? It was first goal. आपको आपको लगा कि भाई अभी तो फर्स्ट गोल हो गया, चलो टेंशन खत्म, लेट्स नाउ जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग? नहीं, गोल मारने के बाद काफी अच्छा लगा था. फिर उसके बाद भी और गोल मारना था और काफी ट्राई किए, और होपफुली अभी ये सीजन में कुछ कर सके. अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, जो है कि आपके ड्रेसिंग रूम में म्यूजिक सेट कौन करता है? करण भाई. Karan Amin. Wait, so the question is, what music आप क्या म्यूजिक सुनते हो, and is your Karan bhai's music same as your taste? Yeah, when you start staying with the people who you want to be with, तो अपने आप मेरे को लगता है आप सबका टेस्ट सेम हो जाता है. And Karan bhai is a person कि पता नहीं कहाँ से इतने अच्छे सॉन्ग्स ढूंढ के लाता है, तो उनका म्यूजिक में टेस्ट रियली अच्छा है. And yes, we enjoy. That's why he is the handler, you can say. He owns the speaker and he plays the music. जिसका स्पीकर उसका म्यूजिक? नहीं, as in जिसका स्पीकर नहीं, मैं बोल रहा हूँ गाना कौन बजा रहा है. अच्छा, ऐसे? हाँ, और एक चीज, स्पीकर भी एक्चुअली उसका ही तो अगर एक ऐसा सवाल है, अगर लेट्स से अनिकेत ने अपना स्पीकर ले गए, तो आपको लगता है कि करण भाई बोलेंगे कि चलो आज तू बजा म्यूजिक, मैं नहीं बजाऊंगा? हाँ, अरे बहुत बार बोलते हो, अरे क्या हमेशा मैं बजा, आज तू बजा. तो अनिकेत भी बजाता है, तो अनिकेत का अलग ही कलेक्शन है, फुल कोल्हापुर वाले म्यूजिक बजाता है, डेंजर वाले. हाँ, डू द फॉरेन कोचेस को समझ में आता है ये म्यूजिक क्या है? नहीं, थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली, बट आई थिंक वो लोग बहुत स्वीट होते हैं, पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी लेके आते हैं, फिर भी आके डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे म्यूजिक. अच्छा. बोलते कभी कभी उनके भी फेवरेट सॉन्ग है, वो बोलते कि ये वाला सॉन्ग प्ले करो, बट अदर देन दैट कोई भी अच्छा सॉन्ग होगा हिंदी में, पंजाबी सॉन्ग्स बहुत ऐसे सॉन्ग्स है जहाँ पे आपको डांस करने का मन करता है, तो वो सॉन्ग्स पे वो लोग डांस करते हैं. Okay. All right. There's one more question coming in, and this is आप अनिकेत के लिए है. अनिकेत सर, how can we improve our dribbling? अब देखो, सवाल पूछना मेरा काम है. Don't say कि इतना open ended सवाल मत करो. अब क्या बोलूं, खुद पे ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, स्पीड में और बॉल टचेस में, और उसके ऊपर ध्यान देके it will automatically increase your speed. अब जितना उस पे ड्रिबलिंग पे फोकस करोगे और जितना आप स्पीड के साथ बॉल ड्रिबलिंग मैच करोगे, उतना
खुद के लिए अच्छा है और उसे ही इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, फारूक, आपके लिए एक सवाल है। जो इस इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे पहले, आप उसमें से आपने पहले बोला कि आपको बहुत हेल्प हुआ कि स्टीव कोपेल वाज द कोच फॉर द जमशेदपुर, एंड आपने ये भी बोला है कि आई थिंक वन ऑफ द असिस्टेंट कोचेस और समवन टोल्ड यू कि नई गलतियां करो, पुरानी गलतियां मत करो। पुरानी गलतियां सुधार लो पर नई गलतियां करो, करेक्ट? तो कैन यू गिव अस एन एग्जांपल कि आपने नई गलती क्या की और पुरानी गलती क्या सुधार लिया? सो ऑब्वियसली अगर बताऊं मैं, तो सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब आप मैचेस खेलते हो जो आप रियलाइज नहीं करते हो जब आप खेल रहे हो, बट जब मैच होने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जब वीडियो देखते हैं, एनालाइज करते हैं मैच, तो तब हमको पता चलता है कि हमने कितने मिस्टेक्स किए। कि एक सिंपल पास भी हेल्प कर देता था अगर हम एक्स्ट्रा टचेस नहीं लेते, तो बहुत सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं। तो वहां पर वो जो नेक्स्ट डे होता था ना हमारे मैच का, वहां पे वो पूरा एक दिन हम लोग का ये जो है एनालाइज करते थे मैच। वो कोच पूरा मैच देखता था रात को और उसमें से क्लिप्स निकालता था, और पर्सनली अगर चाहिए तो पर्सनली क्लिप्स निकाल के पर्सनली मीटिंग रख के he used to make sure that I corrected my mistakes, that I know my mistakes and I shouldn't make those mistakes again. तो वो बोलता था कि ये तेरा मिस्टेक है, ये तो एक एक क्लैरिटी मिलता है कि ये मैं कर रहा था और मुझे पता नहीं था, कि मैच में तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं सब सही कर रहा हूँ, पर बाद में नेक्स्ट डे जब वीडियो देखता हूँ कि तो पता चलता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता था। तो वो सब छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती है। और क्या पूछा था आपने स्टीव कॉपल के बारे में? यस, तो स्टीव कॉपल जो मैनेजर थे हमारे, आई थिंक उनके वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला, बिकॉज ही वाज द वन हु selected me in Jamshedpur. Obviously the management also, but he was the coach. And वहां पर जाके मुझे बहुत सारे चांसेस मिले मैचेस खेलने, क्योंकि उसके पहले केरला ब्लास्टर में मुझे सिर्फ 2 ही चांस मिले थे, क्योंकि वहां पे सब सुपरस्टार्स थे टीम में। एंड टू प्ले व्हेन यू हैव सीके विनीत, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद राफी and Antonio German and all the foreign guys, superstars, Belfort and so many players, उनको compete करके उनके साथ फर्स्ट लेवल में खेलना, it's not easy, वो भी मेरे फर्स्ट ईयर में। बट फिर भी मुझे कोच ने 2 चांस दिया उसके लिए, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट जमशेदपुर में मुझे बहुत चांसेस मिले, आई थिंक कुछ 13-14 मैचेस में खेला, कुछ मैचेस स्टार्ट किए, कुछ मैचेस एज ए सब्स्टिट्यूट अंदर आया। एंड वो ईयर था जिसपे मुझे बहुत सारा गेम टाइम मिला, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, जो मुझे अभी भी बहुत हेल्प करता है। अच्छा, that's why I said that. Okay, so there is a question. I think this person is a Jamshedpur FC fan. So he's asking favorite goalkeeper of India. फेवरेट गोलकीपर ऑफ इंडिया मेरे लिए या अनिकेत के लिए? दोनों बता दो। अनिकेत बोल मैं। मेरे लिए तो गुरप्रीत संधू। अच्छा, फारूक भाई आपके लिए? मेरे लिए एक अपकमिंग गोलकीपर है अभी जो जमशेदपुर एफसी में था, उसका नाम है मोहम्मद रफीक। ईगल गैंग बट वो अपकमिंग है ऑब्वियसली, बट अदर देन हिम राइट नाउ एट प्रेजेंट आई थिंक गुरप्रीत भाई इज डूइंग वेरी वेल, सो आई वुड से गुरप्रीत भाई। all right. There's one more question from Falgun. वो पूछ रहे अनिकेत सर और फारूक सर, how can we become better wingers? So आप ऐसा आंसर करो कि विंगर होना और फॉरवर्ड होने में डिफरेंस कितना होगा। लेट्स से आप अगर एक मैच फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हो और दूसरा विंग पे, तो आपको फोकस किस पे रहना चाहिए? लाइक डिफरेंस क्या है उन दोनों में? So I think that would help them answer the question. I think Aniket should answer this because he has played more than me as a winger. तो अनिकेत ज्यादा हेल्प कर सकता है। Obviously I'll tell after him. बोल अनिकेत। लाइक विंगर पे खेलना काफी लाइक इजी है। लाइक वहाँ पे तुम ड्रिबल कर सकते हो और अगर आपके पास स्पीड है तो वो यूज करके आप बीट कर सकते हो, और फिर उसके बाद लाइक क्रॉस या जैसे आपकी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी पे खेल के लाइक आप इजी बना सकते हो। लाइक इजी स्ट्राइकर्स को इजी चांस क्रिएट करके दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से लाइक जो भी विंगर खेलता है लाइक वो स्पीड और उसका ड्रिबलिंग और जो फाइनल पास है वो अच्छा होना चाहिए।
अच्छा, आपको कभी नहीं ऐसा लगता कि यार विंगर पे तो ऊपर नीचे भागना पड़ता है, दिस स्ट्राइकर फेलो ही डजंट इवन अप्रिशिएट व्हाट आई डू? वो तो है लाइक, अगर आप अच्छा कुछ करोगे वही दिखाई देता है, अगर आप गलती करोगे तो पता ही है आपको, गाली गाली। All right, Tanuj, are there more questions? Right. So, are we done with the prankster one? It's still showing as open. नहीं तो पूछ लो. So, Muzammil has asked कि ड्रेसिंग रूम में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है, ज्यादा जोक्स कौन करता है? फारूक की स्माइल से लग रहा है कि फारूक ही है. नहीं फारूक पहले ही बोला भाई. थोड़ा पर्सनल अटैक लग रहा है मेरे पे. नहीं आई थिंक सबसे ज्यादा प्रैंक करने वाला, सबसे ज्यादा हंसाने वाला मेरे को लगता है सर्जियो कास्टेल है. कुछ भी बोलते रहता है, इतना हंसाता है ना वो. और उसका पार्टनर एक है अनुपदा. हाँ, हमारे जो मसाज थेरेपिस्ट है, तो उनका नाम है अनुपदा. तो वो एक है, उनकी लाफ्टर जो है ना, वो गॉड. अगर वो यहाँ होते ना, अब और उनको बोल दिया ना हंस वो, तो आप लोग सब ये पूरा सेशन सिर्फ हंसते रहोगे. कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी. अच्छा, उनकी हंसी पे हम हंसेंगे क्या? हाँ, उनकी हंसी पे आप हंसोगे. 3 साल से हम वही कर रहे हैं, 2 साल से एक्चुअली. अच्छा, तो इट ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन बारू. आपका फेवरेट कोच कौन है? ये क्वेश्चन पूछा है तरन्नुम शेख ने. लेट्स गो विद अनिकेत, आप बताओ. माय फेवरेट कोच जयदीप अंगिरवाल, जिन्होंने मुझे फुटबॉल सिखाया. शाउट आउट टू हिम, आई थिंक. थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ गुड प्लेयर. और फारूक आपका? आई थिंक मैं भी वही आंसर करूंगा कि जो कोच ने मुझे स्काउट किया और जहाँ से मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया, हिज नेम इज एवरिस्टो कार्डोज. तो यहीं से जहाँ मैं रहता हूँ. और मेरे स्कूल के कोच थे जिन्होंने मुझे एक सेंटर बैक से स्ट्राइकर बनाया. मैंने एज अ सेंट्रल डिफेंडर स्टार्ट किया था और उन्होंने मुझे स्ट्राइकर बनने बोला. आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम इट स्टार्टेड. And if he was with us today, I think he would be very happy see me doing well. ठीक है. आई थिंक सारू, आज के लिए इतने क्वेश्चंस ले लेते हैं. या एक लास्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन लेना है क्या फारूक आपको? डिपेंड करता है, पूछो पहले. मुंबई सिटी के लिए कब खेलोगे आप? मुंबई सिटी के लिए? यस. मुंबई सिटी के लिए कब खेलूंगा भाई? अभी देखो, साहिल जैन is asking this question. I don't talk about other clubs when I'm playing for JFC. साहिल जैन, I hope आपने सुन लिया ठीक से कि JFC all the way, it seems. Yes. Thanks for that, Farooq. जम के खेलो. और I think किसी से पूछा भी नहीं, मतलब किसी ने अपना नाम भी नहीं दिखाया जब उसने पूछा कि जमशेदपुर मुंबई को हराएगा या नहीं. वो पहले से उसने अपना नाम छुपा दिया इसमें. तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक हम डिस्कस कर ही देते हैं. एग्जैक्टली. तो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फारूक भाई, बात रैप अप करते हैं. करेक्ट. एंड आई थिंक दिस इज फॉर बोथ फारूक एंड अनिकेत. व्हाट आप लोग कर क्या रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे? लाइक व्हाट आर योर डेली रूटीन्स लाइक? मैं तो पबजी खेलने सीखा हूँ अब. नो वे, आप भी. आई थिंक अनिकेत, आप अपना पबजी आईडी बता दो इस चैट पे, ताकि आपको थोड़ा पार्टनर्स मिल जाएं जिनके साथ खेलने. हाँ, मैं बता देता हूँ. और फारूक, आपका क्या शेड्यूल चल रहा है? मेरा फिलहाल तो क्या चल रहा है, रमजान चल रहा है और वर्कआउट चल रहा है. खा रहा हूँ, फैमिली के साथ हूँ. उसके पहले कुछ अलग था शेड्यूल. सुबह उठना, खाना अच्छे से, देन वर्कआउट, देन समटाइम थोड़ी देर अगर कोई बुक रीड कर लिया या नहीं. फोन ज्यादा यूज करने लग गया हूँ. पहले इतना यूज नहीं करता था, अब तो टाइम बहुत ज्यादा है तो फोन ज्यादा यूज करता हूँ. अच्छा, और तो आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ओह माय गॉड, भारी किताब पढ़ रहे हो आप तो. Aniket, are you also reading such heavy books or? No. अनिकेत सबको मार रहा है. ऐसा कुछ नहीं, अभी तो मार रहा हूँ सबको. भाई मार रहा है. ओ भाई, ये मारो मुझे. नाइस वाला. हाले उधर. All right. One question is, I think let's ask the Mumbaikar more than the Kolhapuri. Other than vada pav, आपका favorite food क्या है?
अदर देन वड़ा पाव तो मेरा फेवरेट है नहीं, पहली बात। बहुत अरे तो देखो अजम्पशन ये होता है, ओके हाँ अजम्पशन इज मुंबईकर है तो वड़ा पाव तो पसंद करोगे ही। तो अदर देन वड़ा पाव डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, मैं खाना छोड़ दिया मैंने वो सब। मैं सिर्फ एक ही चीज क्रेव करता हूँ जब मैं घर पे नहीं हूँ, वो है जो मेरी मम्मी बनाती है, दाल राइस। बट अगर फास्ट फूड बोला जाए तो दोस्तों के साथ बाहर जाके समोसा खाना। अच्छा, आपने ये सब छोड़ दिया क्या खाना, समोसा वमोसा? द सैक्रिफाइस। अभी जेएफसी वाले सुन रहे हैं ना चैट पे। चलो आई थिंक क्लोज करते हैं फिर। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फारूक एंड अनिकेत। बहुत ही मजा आया आपसे बात करते हुए। Same here. Thank you so much for having us. Thanks a lot to everyone who joined in. We had a lot of fun with you guys. बहुत मजा आया आपके क्वेश्चंस देख के। तरन्नुम जाते जाते कह रही है कि बहुत ट्रिकी होता है रूम पार्टनर चूज करना। कौन बोल रहा है? तरन्नुम शेख कह रही है। Okay. So thank you for that. Those questions, insights. फारूक, अनिकेत, बहुत मजा आया। चलो। Yes. And if you guys want to listen to the audio recording of this conversation, I think it will be up on a podcast feed, which will put it up on Twitter and Instagram. Thank you very much, everyone, and special thanks to Farooq and Aniket and my dear friends Baru and Arush for putting this together. And फिर से मुलाकात होगी. See you guys. I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. Some really fun guests on the network this week. Cyrus welcomed Dia Mirza to come and have a conversation about all kinds of different things. Danny Morrison was on Edges and Sledges, the cricket podcast. If you haven't heard that, that's always a fun listen. And Raul Subramanian was on Football Should Fall to grow their ever more exciting list of guests. And it's not just that. Mantra Mugdha, old friend of ours, was on Advertising is Dead. Manu Pillai was on the Filter Coffee podcast. It's been one great guest after the other. And with that, we hope to catch you again next week. Did I just catch you on your way to work? Or did you end up pulling an all-nighter? Let me guess. You have a packed schedule for the day, the week, and probably the month and the year. That's a lot for your mind to handle, don't you think? This buzzing chaos also brings tons of negative thoughts. Am I right? Try spinning that bottle in a positive direction with me, Chetna, on the Positively Unlimited podcast, every Monday on IBM Podcasts. It's time to change your life one alphabet at a time.